دور کسی جنگل میں کومل چڑیا جنگل کی رانی تھی۔ اس کے راجیہ میں سبھی پکشی بہت خوش تھے۔ کومل چڑیا کا منتری چیکو طوطا تھا۔ وہ چڑیا کو بہت اچھی صلاح دیا کرتا تھا۔ چڑیا بھی طوطے سے بہت خوش تھی، اسی لیے وہ کسی بھی معاملے میں طوطے سے صلاح کیا کرتی تھی۔ اسی جنگل میں ایک بجلی کبی رہتی تھی جو بہت چالاک تھی۔ وہ چڑیا کی منتری بننا چاہتی تھی۔ چڑیا اچھے سے جانتی تھی کہ بجلی بہت چالاک ہے، اس لیے وہ اپنے پاس اسے نوکری پر نہیں رکھتی تھی۔ جس بات کا بجلی کبی کو بہت دکھ تھا اور وہ ہر سمے پلان بناتی رہتی تھی کہ کیسے وہ چڑیا سے بدلہ لے اور اس جنگل کی رانی بن جائے۔ یہ چھوٹی چڑیا کتنی بری لگتی ہے، میرا من کرتا ہے 1 منٹ سے پہلے اسے مار دوں۔ اور وہ موٹی چونچ والا کتنی چاپلوسی کرتا ہے۔ ایک بار مجھے موقع مل جائے میں دونوں سے حساب برابر کروں گی۔ ایک بار میں اپنی سہیلی بھوری الو کے پاس جاتی ہوں، شاید اس کے پاس کوئی اپائے ہو۔ بجلی کبھی اپنی سہیلی بھوری سے ملنے دوسرے جنگل چلی جاتی ہے۔ کیا حال ہے میری سہیلی کا؟ آج کیسے آنا ہوا؟ بھوری، مجھے تمہاری یاد آ رہی تھی، اس لیے تم سے ملنے چلی آئی۔ بجلی، میں تمہیں اچھے سے جانتی ہوں، بغیر مطلب کے تم کبھی نہیں آتی۔ بتاؤ کیا بات ہے؟ اچھا، تم اتنا کہہ رہی ہو تو بتا دیتی ہوں۔ بھوری سہیلی، تم تو جانتی ہو ہمارے جنگل کی چڑیا رانی کو، مجھے وہ ذرا بھی اچھی نہیں لگتی، اور اس کا منتری طوطا، وہ تو مجھے اس سے بھی زیادہ برا لگتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ کسی طرح سے میں جنگل کی رانی بن جاؤں۔ اب تم ہی بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ بس بجلی، اتنی سی بات، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ میرے پاس یہ زہریلے پھول ہیں، تم یہ پھول رانی کے بھوجن میں ملا دینا اور الزام اس طوطے پر لگا دینا۔ دیکھنا کیسے ہی دونوں تمہارے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ واہ واہ سہیلی، کمال کا آئیڈیا ہے۔ اب میں چلتی ہوں، تم بھی میرے جنگل میں ضرور آنا۔ ہاں ہاں، جب تم رانی بنو گی تو میں ضرور آؤں گی۔ پھر بجلی کبھی وہ زہریلے پھول لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اب میں ان پھولوں کو رانی چڑیا کے بھوجن میں کیسے ملاؤں؟ وہ موٹی چونچ والا تو ہر سمے سر پر سوار رہتا ہے۔ پہلے اس موٹی چونچ والے کو یہاں سے بھگانا ہوگا، پھر ہی میں یہ پھول چڑیا کے بھوجن میں ملاؤں گی۔ اور پھر ایسے ہی رات ہو جاتی ہے۔ بجلی کبھی کچھ سوچتی ہے اور سو جاتی ہے۔ اگلی صبح ہوتے ہی بجلی کبھی سیدھی طوطے کے پاس جاتی ہے۔ طوطے بھیا، کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں بجلی، بس میں رانی کے پاس ہی جانے والا تھا۔ تم سناؤ، سب ٹھیک تو ہے نا؟ آج صبح صبح ہی اٹھ گئے؟ ہاں طوطے بھیا، میں تمہیں تمہاری دیدی کا سندیش دینے آئی تھی۔ کل میں دوسرے جنگل گئی تھی، راستے میں تمہاری بہن مجھے ملی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میرے طوطے بھیا کو سندیش دے دینا، آج آ کر مجھے مل جائے، کہ میں نے اپنے بھیا سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ طوطے، مجھے تو تمہاری بہن کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، تم ضرور آج اپنی دیدی سے ملنے چلے جاؤ۔ میں تو کہتی ہوں کہ ابھی چلے جاؤ، میں تمہارا رانی کو بتا دوں گی۔ بجلی، میری بہن زیادہ تو بیمار نہیں تھی؟ مجھے تو کچھ زیادہ ہی بیمار لگ رہی تھی۔ تو ٹھیک ہے، میں ابھی چلا جاتا ہوں، تم مہارانی چڑیا سے کہہ دینا۔ ہاں ہاں طوطے، تم چنتا نہیں کرو، میں بتا دوں گی۔ پھر چیکو طوطا دوسرے جنگل کی اور چلا جاتا ہے۔ پھر بجلی کبھی اپنے گھونسلے کی اور وہ پتے لینے جو کل وہ اپنی دوست سے لے کر آئی تھی۔ طوطا جب دوسرے جنگل اپنی بہن کے پاس پہنچتا ہے تو وہ بالکل ٹھیک تھی۔ دیدی، تم تو بالکل ٹھیک لگ رہی ہو، لیکن اس کبھی نے مجھے یہ کیوں کہا کہ تم بیمار ہو؟ کیا کبھی؟ مجھے تو کوئی کبھی نہیں ملی، نہ جانے کبھی نے تم سے کیا کہا۔ یہ سن کر طوطا بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ اچھا دیدی، اب مجھے واپس جانا ہوگا، لگتا ہے وہ کالی کبھی ضرور کوئی چالاکی کر رہی ہے۔ ایسا کہتے ہوئے طوطا وہاں سے واپس چلا جاتا ہے۔ مجھے بھی جا کر دیکھنا چاہیے، کہیں میرا بھیا کوئی بڑی مصیبت میں نہ پھنس جائے۔ اور پھر طوطے کی دیدی بھی اس کے پیچھے چلی جاتی ہے۔ دوسری اور بجلی کبھی وہ زہریلے پھول چڑیا کے بھوجن میں ملا دیتی ہے۔ تبھی مہارانی چڑیا بھی بھوجن کھانے کے لیے آ جاتی ہے۔ ارے، یہ طوطا نہیں آیا ابھی تک؟ رانی جی، یہ بھوجن طوطا رکھ کر گیا ہے، بول رہا تھا کہ میں ابھی آتا ہوں۔
फिर चिड़िया वो भोजन खा लेती है। थोड़ी ही देर बाद उस पर उन जहरीले पत्तों का असर होने लगता है। बिजली कभी वहाँ से तुरंत चली जाती है। रानी कोमल तड़पना शुरू कर देती है। तभी तोता वहाँ आ जाता है। वो चिड़िया को इस हालत में देखकर बहुत परेशान हो जाता है। रानी, आपको क्या हुआ है? लेकिन चिड़िया के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। तभी बिजली कभी 2 सिपाही लेकर वहाँ आ जाती है। ये देखो, तोते ने क्या किया, इसने रानी को जहर दे दिया। सिपाहियों, जल्दी से इसे पकड़ लो और इसे फांसी दे दो। नहीं नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। रोते हुए तोता ऐसा कहता है, लेकिन सिपाही उसकी बात नहीं सुनते और उसे वहाँ से ले जाते हैं। अब बताओ चिड़िया, मुझे नौकरी नहीं देती थी ना, अब ऐसे ही तड़प तड़प कर मर जाओगी और फिर मैं बनूंगी इस जंगल की रानी। तुम्हें ये जहरीले पत्ते मैंने ही दिए हैं और अब मैं जा रही हूँ तोते को फांसी देने। तोते की दीदी दूर खड़ी ये सब सुन रही थी। वो जल्दी से वहाँ से जाती है और उस जंगल के कबूतर वैद को लेकर आती है। कबूतर के पास उन जहरीले फूलों की दवा थी। वो जल्दी से चंद कतरे दवा के चिड़िया के मुंह में डालता है। थोड़ी देर बाद उन जहरीले फूलों का असर खत्म हो जाता है और कोमल चिड़िया बिल्कुल ठीक हो जाती है। मुझे जहर उस काली कवि ने दिया था, जल्दी चलो फांसी घाट पर। ऐसा कहते हुए वो सब जल्दी से वहाँ से जाते हैं। सिपाही तोते को फांसी देने ही वाले थे। सिपाहियों, जल्दी से फांसी दो इस तोते को, आज से मैं तुम्हारी रानी हूँ। अच्छा काली कवि, कौन है रानी? पकड़ लो सिपाहियों इस कवि को, इन्हें मुझे जहर दिया था। शुक्र है रानी, आप बच गई। ये काली कवि आपके महल पर कब्जा करना चाहती थी। हाँ तोते, मुझे सब पता चल गया है। सिपाहियों, जल्दी से इस कवि को फांसी दे दो। रानी के आदेश पर सिपाही बिजली कवि को फांसी दे देते हैं। इस तरह बिजली कवि को उसकी चालाकी की सजा मिल जाती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो गड्ढा हम दूसरों के लिए खोदते हैं, कभी कभी खुद उसमें गिर जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। बिजली बेटी, जरा बाहर तो आकर देख, मौसम कितना सुहाना है। आ रही हूँ माँ, देखो तो आज मैंने ये काला चश्मा पहना है, कैसी लग रही हूँ मैं। बेटी उधर नहीं, इधर देखो, मैं यहाँ खड़ी हूँ। अरे वाह वाह, मेरी बेटी तो ऐसे लग रही है जैसे आसमान से कोई काली परी उतरी हो। उसी समय बादल कप्पा वहाँ से गुजरता है। वो बिजली को देखकर वहीं रुक जाता है। वाह वाह, क्या अदाएं हैं, ऐसा लगता है जैसे ये हसीना बस मेरे लिए ही बनी है। ऐसा सोचते हुए बादल कप्पा बिजली कवि के पास आता है। माँ जी नमस्ते। इसी जंगल के नदी के उस पार वाले आम के पेड़ पर मेरा बहुत बड़ा घर है। मैं आपकी सुंदर बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। हाथ? बादल बेटे, मेरी बेटी जंगल की सबसे सुंदर कवि है, शहजादी है शहजादी। इसे देखने के लिए दूसरे जंगल के अमीर अमीर काफे लाइन लगाकर खड़े होते हैं। तुम्हारे पास क्या है? माँ जी, मेरे पास पूरा आम का बाग है। मैं वादा करता हूँ कि बिजली को कभी जमीन पर पाँव नहीं रखने दूंगा। अच्छा तो ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरी बेटी को अंधेरा बिल्कुल पसंद नहीं। अगर तुझे मेरी बेटी से शादी करनी है तो तुझे जंगल के सबसे ऊंचे पहाड़ से जादुई जुगनू लाना होगा। वो जुगनू जिसकी रोशनी कभी खत्म नहीं होती। परंतु माँ जी, ये तो बहुत खतरनाक है, वहाँ तो बूढ़ी चील रहती है। तो फिर रिश्ता कैंसिल। मेरी बेटी तो किसी शहजादे कवि के घर ही जाएगी जो इसके लिए चांद तारे लाएगा। नहीं नहीं माँ जी, बिजली से शादी तो मैं ही करूँगा। ठीक है, मैं जाऊँगा। इतनी सुंदर कवि के लिए तो मैं शेर की मूछें भी तोड़ कर ला सकता हूँ। ऐसा कहते हुए बादल कप्पा वहाँ से चला जाता है। माँ जी, तुमने क्यों नहीं बताया कि मैं अंधी हूँ और देख नहीं सकती? बेटी, अगर मैं उसे बता देती तो वो कभी तुझसे शादी ना करता। जैसे पहले 100 कव्वे तुझे रिजेक्ट करके गए हैं। ये कव्वा तेरे लिए परफेक्ट है, इसलिए तो मैंने इसे यहाँ से दूर भेजा है ताकि उसे पता ना चले
کہ तू अंधी है। फिर बादल कौवा चिड़िया के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। बादल भैया, एक बार अच्छे से छानबीन कर लेनी थी। वो कौवी तो ठीक है ना? चिड़िया बहन, बहुत सुंदर है वो कौवी। जब से उसे देखा है तो मैं सब कुछ भूल गया हूँ। बस अब मैं उसे पाकर ही रहूंगा। मैं जा रहा हूँ ऊंची पहाड़ी पर अपनी बिजली जी के लिए जुगनू लाने। ठीक है बादल भैया, आप आराम से जाइए, ऊपर वाला आपको सफलता दे। तब तक हम सब दोस्त मिलकर आपकी शादी की तैयारी करते हैं। फिर बादल कौवा वहाँ से उड़ जाता है। वो ऊंची पहाड़ी की ओर बढ़ने लगता है। पूरा दिन उड़ने के बाद आखिरकार बादल कौवा एक गार में पहुँच जाता है। गार में हर तरफ अंधेरा था। जुगनू, जुगनू भैया, आप कहाँ हो? मैं आपको लेने आया हूँ। अचानक एक चील बादल कौवे के सामने आ जाती है। बादल कौवा देखकर डर जाता है। कौन हो तुम और यहाँ मेरी नींद क्यों खराब की? चील, मैं बादल कौवा हूँ। मुझे जुगनू चाहिए जो सूरज की तरह चमकता है। अच्छा, तो तुझे जुगनू चाहिए, लेकिन उसके लिए तुझे मुझे कुछ देना होगा। मैं अब बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, मांस नहीं खा सकती। मुझे जंगल से कोई मीठा फल ला कर दो, फिर ही मैं तुम्हें जुगनू दूंगी। हाँ चील माँ जी, मैं अभी आपके लिए मीठे फल लाता हूँ। ऐसा कहते हुए बादल कौवा खुशी खुशी उस गार से निकलता है और वो अपने आमों के बाग में जाता है, जहाँ वो एक टोकरी आमों से भर लेता है और वापस गुफा की ओर चला जाता है। ये लीजिए माँ जी, ये रहे आपके मीठे फल। बहुत मीठे आम हैं मेरे बाग के। सच कहा कौवे, ये बहुत मीठे आम हैं। चील माँ जी, अब मुझे वो जुगनू दे दीजिए। हाँ बादल, याद आया। वो जुगनू इसी गार के आखिरी कोने में एक बड़े मकड़ी के जाल में फंसा हुआ है। अगर हिम्मत है तो जाकर निकाल लो। फिर बादल कौवा आगे बढ़ता है। वो एक बड़े मकड़ी के जाल में फंस जाता है। वो जितना निकलने की कोशिश करता है उतना ही उसमें फंस जाता है। तभी उसे सामने जुगनू नजर आता है। जुगनू, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक ऐसी शहजादी से मिलवाऊंगा जो आपको अपने सर का ताज बनाएगी। क्या ताज बनाएगी? मुझे सब पता है। वो कभी मुझे अपने घोंसले में बल्ब की तरह लटकाएगी। मैं नहीं चाहता। देखो जुगनू, अगर तुम नहीं गए तो मेरी शादी नहीं होगी और मैं कबारा ही मर जाऊंगा। क्या तुम एक आशिक का दिल तोड़ दोगे? ये सुनकर जुगनू भी रोने लगता है। कभी तुम्हारी बात सुनकर मुझे रोना आ गया। मेरी साथी जुगनू, वो मुझे छोड़कर अकेले चली गई। तब से मेरा दिल टूट गया था और मैं इसी गुफा में रहने लगा। लेकिन आज मैं तुम्हारा दिल नहीं टूटने दूंगा। ऐसा कहते हुए जुगनू बादल कौवे के साथ वहाँ से चला जाता है। आ गया बादल बेटा, मुझे यकीन था तू ये जुगनू जरूर लाएगा। हाँ माँ जी, ये लीजिए जुगनू, और अब मुझे अपना दामाद बना ले। फिर जंगल में शादी की रौनकें शुरू हो जाती हैं। बादल कौवा सज संवर कर अपने दोस्तों के साथ बारात लेकर आता है। चिड़िया बहन, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। इस कपी ने ये काली ऐनक क्यों पहनी है? तोते भैया, बादल ने कहा था कि बिजली को रोशनी पसंद नहीं, इसलिए हो सकता है उसने ये ऐनक लगाई हो। सावित्री अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश थी। आज मेरी बेटी का नसीब चमक उठा है। बादल और बिजली की शादी हो जाती है। तभी भूरा कौवा वहाँ आता है। ये शादी रोक दो, बिजली अंधी है। ये सुनकर सभी पक्षी हैरान हो जाते हैं। लेकिन भूरे, अब तो शादी हो गई। मुझे तो पहले ही दाल में कुछ काला लग रहा था। माँ जी, आपने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। हाँ बादल बेटे, मेरी बेटी अंधी है। मैंने इसीलिए ये शर्त रखी थी ताकि तुम्हें सच का पता ना चले। बेटा, मैं डरती थी कि कोई अंधी कौवी से शादी नहीं करेगा, मेरी बेटी तन्हा रह जाएगी। बादल, तुम्हारे तो सारे ख्वाब टूट गए, अब तुम क्या करोगे? दोस्तों, मैंने बिजली से इसकी खूबसूरती की वजह से प्यार किया था, लेकिन आज मुझे इसकी मासूमियत से प्यार हो गया है। अगर इसे नजर नहीं आता तो क्या हुआ, मेरी आंखें तो सलामत हैं।
अब से मैं ही बिजली की आंखें बनूंगा। दादी जी, क्या आप सच कह रहे हैं? मुझे तो लगा था कि आप ही बाकी कपों की तरह निकलेंगे। जैसे ही आपको मेरा सच मालूम होगा तो मुझे छोड़कर चले जाएंगे। नहीं नहीं बिजली, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ऐसे वो सब बहुत खुश हो जाते हैं और फिर सब पक्षी मिलकर शादी का भोजन खाते हैं। बादल कप्पा अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर अपने घर में चला जाता है। जंगल का माहौल खुशियों से भर जाता है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। कुछ घाव समय के साथ साथ भर जाते हैं, लेकिन माँ से बिछड़ने का दुख वो है जो आत्मा को खा जाता है। कोमल चिड़िया की जिंदगी इसी समय रुक गई थी जब इसकी माँ इसे अकेला छोड़कर चली गई। आकाश चिड़ा जो अपनी बेटी की उदासी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, एक ऐसे फैसले की तरफ बढ़ रहा था जो इसका घर बसा देता या सब कुछ राख कर देता। कोमल बेटी, कब तक ऐसे अकेली बैठी रहोगी? तुम्हें एक माँ के प्यार की जरूरत है और मुझे एक सहारे की। कल बिजली कभी आ रही है, वो तुम्हारी नई माँ होगी। बाबा, क्या वो मुझे मेरी सगी माँ जैसा प्यार देगी? हाँ बेटा, वो तुमसे बहुत प्यार करेगी। उसकी भी एक बेटी है, वो तुम्हारे जितनी है। तुम दोनों मिलकर खुश रहना। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ बिजली कभी अपनी बेटी पिंकी को लेकर वहां पहुंच जाती है। बिजली कभी पूरे जंगल में अपनी लालच की वजह से मशहूर थी। इसे पता था कि आकाश एक भोला भाला मेहनती चिड़ा है जिसने अपनी मेहनत से ढेर सारा सोना और अनाज जमा कर रखा है। वो ममता का निकाब पहनकर इस घर को लूटने आई थी। आकाश जी, देखो मैं कोमल के लिए क्या लाई हूँ। आज से ये घर मेरा है और कोमल मेरी बेटी है। मेरी पिंकी और ये कोमल दोनों मिलकर खेलेंगी। मुझे तुम्हारी कसम, मैं तुम्हारी बेटी की आंखों में एक भी आंसू नहीं आने दूंगी। पास बैठा मिठू तोता बिजली को देखकर बोलता है, आकाश भैया, कभी और चिड़े का जोड़ नहीं बनता। पानी और आग का रिश्ता मत जोड़ो, पछताओगे। अरे तोते जी, अपनी अकल अपने पास रखो। मैं यहाँ प्यार बांटने आई हूँ, तुम्हारी बातें सुनने नहीं। फिर आकाश चिड़ा बिजली का भी उसकी बेटी पिंकी को लेकर अपने घर के अंदर चला जाता है। शादी के कुछ दिन बीतते ही घर का नक्शा बदल जाता है। शेर की खाल पहन लेने से गिद्दड़ शेर नहीं बन जाता। जैसे ही आकाश चिड़ा दाना लेने दूर जाता है तो बिजली का भी मलका बन जाती है। कोमल जो शहजादियों की तरह रहती थी, अब अपने ही घर में एक नौकरानी बन चुकी थी। कोमल चिड़िया अपने घोंसले में सोई हुई थी। तभी बिजली का भी आकर चिड़िया को लात मारती है और उठाती है। ओए महारानी, उठ जा, जाकर नदी से ठंडा पानी ला और मेरी बेटी पिंकी के परों को साफ कर। और हाँ, खबरदार, अगर आकाश को कुछ बताया तो तेरी जुबान काट दूंगी। देखो माँ, ये काली चिड़िया कितनी गंदी लग रही है। इसे कहो मेरे लिए शहद भी ढूंढ कर लाए, मुझे भूख लगी है। कोमल चिड़िया चुपचाप वहाँ से चली जाती है। वो नदी के किनारे बैठकर रोने लगती है। तभी बुलबुल कबूतर वहाँ आते हैं। कोमल, ये तुम्हारी कैसी हालत हो गई है? तुम्हारी आंखें भी सूजी हुई हैं और शरीर पर भी बहुत घाव है। क्या तुम्हें बिजली ने मारा है? हाँ चिड़िया, सच बताओ। बुलबुल सब ठीक कह रही है। हमें तुम्हारी हालत देखकर सब मालूम हो रहा है। हम सब ये बातें आकाश को बताते हैं। ये कभी तो हमारे जंगल के सुकून को बर्बाद कर रही है। नहीं दोस्तों, अगर पापा को पता चला तो वो टूट जाएंगे। वो बिजली पर बहुत भरोसा करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। आकाश की तबीयत भी खराब हो जाती है और वो घोंसले में लेट जाता है। मैं सब सह लूंगी, बस पापा खुश रहे। पिंकी, आकाश ने अपना सारा सोना अपनी बेटी कोमल को दे रखा है। जब तक ये कोमल जिंदा है, आकाश वो सोना मेरे नाम नहीं करेगा। कल सुबह हम इसे अंधी खाई में भेजेंगे। वहाँ एक पुराना दुश्मन सांप रहता है, वो इसका काम तमाम कर देगा। हाँ माँ, फिर तो सोना भी हमारा होगा और आकाश चिड़ा भी आपका गुलाम होगा। चीकू तोता जो खिड़की से गुजर रहा था, वो उन दोनों की बातें सुन लेता है।
सालिमो, मुझे तो पहले ही तुम पर शक था। तुम्हारा अंजाम बहुत करीब है। तोता भागता हुआ कबूतर और बुलबुल के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। तोते, अंधी खाई एक ऐसी जगह है जहाँ सूरज की रोशनी पहुँचते हुए भी डरती है। हाँ, झाड़ियाँ इतनी घनी है कि रास्ता नजर नहीं आता। अगर चिड़िया वहाँ चली गई तो उसका वापिस आना बहुत मुश्किल है। अब हम सबको ही कुछ करना होगा। देख कोमल, अगर तू अपने पिता की जान बचाना चाहती है तो तुझे अंधी खाई में जाना ही होगा। जरा देख तो अपने पिता की हालत। उल्लू वैद्य ने मुझे बताया है कि वहाँ एक नीला फूल है। अगर तू उस काली खाई से वो नीला फूल ले आई तो तेरे बीमार बाप का इलाज हो सकता है। कोमल चिड़िया अपने पिता की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। वो कुछ भी सोचे बिना वहाँ से उड़ जाती है। अंधी खाई में मौत के साए मंडला रहे थे। कोमल जैसे ही एक झाड़ी के पास पहुँचती है तो इसे दो चमकती हुई आंखें नजर आती हैं, जो अंधेरे में किसी भूखे शिकारी की तरह इसे घूर रही थीं। वो एक बहुत बड़ा काला सांप था जिसे बिजली कपी ने पहले ही अंडे और सोने का लालच देकर वहाँ बुलवाया था। अरे, ये नीला फूल कहाँ है? बाबा के पास समय बहुत कम है, मुझे जल्दी करनी होगी। नन्ही चिड़िया, तुझे फूल नहीं बल्कि अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें मिलने वाली है। बिजली ने ठीक कहा था, इस चिड़िया का मांस बहुत नरम होगा। एक झाड़ियों के पीछे छुपी बिजली कपी और उसकी पिंकी ये सब तमाशा देखने के लिए आई हुई थी। देखा पिंकी, अब ये मर जाएगी और फिर सारा खजाना हमारा होगा। जैसे ही काला नाग चिड़िया पर हमला करने लगता है तो आसमान से एक तेज चीख सुनाई देती है। चीकू, तोता, कबूतर और बुलबुल वहाँ आ जाते हैं। तोते के पंखों में एक जलती हुई मशाल थी। तोता मशाल सांप के आगे फेंक देता है। सांप आग से डरकर पीछे भाग जाता है और एक झाड़ियों में घुस जाता है। बिजली और पिंकी के पीछे आकाश भी आ जाता है। उसे तोते ने सारी बात बता दी थी। वो उन दोनों को पकड़कर सभी पक्षियों के सामने लाता है। बिजली, ये है तुम्हारी सच्ची ममता। तुम मेरी बेटी को इस जहरीले नाग के सामने फेंककर तमाशा देख रही हो। बिजली कभी झूठे आंसू बहाने का नाटक करती है। नहीं नहीं आकाश, ये तोता और कबूतर आपको भड़का रहे हैं। मैं तो यहाँ कोमल को बचाने के लिए इस सांप से लड़ रही थी। तोता गुस्से में आकर कहता है, चुप कर जाओ काली कपी, मैंने तुम्हारी सारी साजिश अपने कानों से सुनी थी। तुमने सोना हासिल करने के लिए इस मासूम चिड़िया की जिंदगी का सौदा किया। बिजली, मैंने तुम पर भरोसा किया लेकिन तुम मेरे भरोसे के लायक नहीं निकली। अपनी बेटी को लेकर ये जंगल छोड़कर चली जाओ। उसके बाद मेरे घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। ऐसा कहते हुए वो सभी पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। बिजली और पिंकी वहाँ अकेली थी। सांप जो भूखा था वो बिजली की तरफ आता है और वो बिजली को दबोच लेता है। पिंकी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाती है। सच सांप, मुझे मत खाओ, मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ ना। मुझे भूख लगी है, क्या दोस्त और क्या दुश्मन। अब तू पपी मेरे पेट की भूख मिटाएगी। ऐसा कहते हुए सांप बिजली कपी को मारकर खा जाता है। बिजली ने कोमल के लिए जो खड्डा खोदा था अब वो खुद उसमें गिर गई थी। बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे माँ देने के चक्कर में तेरा जीना हराम कर दिया था। मुझे क्या मालूम था कि वो कभी तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार करेगी। बाबा, आप ठीक हो जाएं, मेरे लिए यही बहुत बड़ा खजाना है। दोस्तों, याद रखें, रिश्ते कागज के टुकड़ों या सोने के सिक्कों से नहीं बनते। धोखा और फरेब की इमारत एक न एक दिन गिर जाती है। सच्ची ममता वो नहीं जो जन्म दे, बल्कि वो है जो हिफाजत करे। कोमल के सब्र और इसके दोस्तों की वफादारी ने साबित कर दिया कि नेकी का रास्ता कठिन जरूर है लेकिन मंजिल हमेशा सुंदर होती है। माँ, क्या अभी तक पापा नहीं आए? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या आज फिर हमें भूखा सोना पड़ेगा? हाँ माँ, भैया ठीक कह रहा है। मुझे भी नींद नहीं आ रही। ऐसे लग रहा है जैसे मेरे अंदर कुछ टूट रहा है। क्या आज पापा हमारे लिए मीठा फल लाएंगे? मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा सब्र करो।
बस तुम्हारे पापा जंगल के उस पार गए हैं, जहाँ ढेर सारे मीठे मीठे फल हैं। वो जरूर कुछ न कुछ लेकर आएंगे। बस अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि तुम एक बहुत बड़े मीठे फल के पेड़ के ऊपर बैठे हो। अरे ओ कोमल, बंद कर, ये झूठी तसल्लियां देना बंद कर। तेरे इस चूं से तेरे बच्चों का पेट नहीं भरने वाला। जब से तू इस घर में आई है तो मनहूसियत पूरे घर में छा गई है। मेरा बेटा बंटी, जो कभी जंगल का सबसे शक्तिशाली पक्षी था, आज हड्डियों का ढांचा बन गया है, सिर्फ तेरे कारण, इन मनहूस बच्चों का पेट पालने के लिए। माँ जी, ऐसा ना कहें, बच्चे तो मासूम होते हैं। और माँ जी, इन सब में मेरा क्या कसूर है? मैं तो खुद कई दिनों से सिर्फ पानी पीकर ही गुजारा कर रही हूँ। कसूर तेरी किस्मत का है। देखो जरा, रात आधी गुजर गई है और मेरा बेटा अभी तक किसी खतरे में भटक रहा होगा। सुन ले, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं तुझे जीने नहीं दूंगी। तभी बंटी चिड़ा थका हारा घर लौट आता है। कोमल, माँ, मुझे माफ कर देना। मैंने पूरा जंगल छान मारा। चीलों से छुपकर मैं दूर दूर जंगल तक गया, पर कहीं भी मुझे कुछ खाने के लिए नहीं मिला। जंगल में सूखा पड़ा है, कहीं से कोई दाना तक नहीं मिल रहा। बंटी जी, आप आ गए हैं, यही बहुत है। ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। आप आराम करें, आपके पंख घायल हो चुके हैं। आराम? ये आराम का समय है? फिर बंटी चिड़ा अपने घोंसले में सो जाता है और कोमल चिड़िया अपने पति के पंखों पर मरहम लगाती है। अगली सुबह हो जाती है। बंटी सुबह सवेरे ही दाने की खोज में निकल जाता है। कोमल चिड़िया अपने बच्चों को लिए बाहर बैठी हुई थी। तभी बिजली कवि मीठे फलों की टोकरी लिए वहाँ आती है। अरे कोमल बहन, अभी तक यहीं बैठी हो? मैं यहाँ से घर जा रही थी तो बच्चों के रोने की आवाज सुनकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। देखो कैसे इन मासूम बच्चों के चेहरे पीले पड़ गए हैं। ऐसा कहते हुए बिजली कवि एक मीठा फल उन बच्चों के सामने रखती है। ये लो बबलू और मीना, ये मीठा फल खा लो। तभी चिड़िया की सास भी वहाँ आ जाती है। अरे बिजली, तेरे पास इतना फल कहाँ से आया? पूरे जंगल में तो सूखा पड़ा है, पक्षी मर रहे हैं भूख से, और तेरे पास ये फलों से भरी हुई टोकरी। माँ जी, मेरे जैसा दिमाग हो तो सब कुछ मिलता है। मैंने सुना है आपका बेटा बंटी पूरी रात भटकता रहा है, पर इसे खाने को कुछ नहीं मिला। सच तो ये है कि वो मेहनत तो करता है, लेकिन किस्मत का मारा है। बिजली बहन, आपका फल देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप यहाँ क्यों आई हैं? मैं जानती हूँ कि बगैर किसी मकसद के आप किसी के पास नहीं जाती। तौबा तौबा, कोमल, तुम मुझे इतना गलत समझती हो। मैं तो सिर्फ मदद करने के लिए आई थी। मैं तो तुम्हें बताने आई थी कि नदी के उस पार काला महल है, जिसकी मालकिन एक बहुत बड़ी और दयादिल चील है। इसे अपने अंडों की निगरानी के लिए एक नौकरानी की जरूरत है। बदले में वो उसे इतना अनाज और सोना देगी कि आने वाली 7 नस्लें शाही जिंदगी गुजारेंगी। नहीं बिजली, सब जानते हैं जो पक्षी भी नदी के उस पार काले महल में गया है वो कभी वापस नहीं आया। मैं अपने बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तो ठीक है चिड़िया, मत जाओ। अपने सामने इन बच्चों को मरते हुए देखो। जरा देखो अपने बच्चों को, भूख के कारण कैसे कमजोर हो गए हैं। कल को ये मर गए तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। माँ वही होती है जो अपनी संतान के लिए अपनी जान खतरे में डाल दे, वो नहीं जो इनका तमाशा देखे। हाँ कोमल, बिजली ठीक कह रही है। तू तो बहुत बड़ी नेक बनती थी, अब अपने बच्चों की जिंदगी के लिए इतनी सी कुर्बानी नहीं दे सकती। बंटी को मैं संभाल लूंगी, तू बस जा और अनाज लेकर आ जा। अगर तू ना गई तो मैं समझूंगी कि तू इन बच्चों की सगी माँ नहीं है, बल्कि इनकी दुश्मन है। कोमल चिड़िया अपने बच्चों की तरफ देखती है जो भूख से नाडाल होकर जमीन पर पड़े थे। वो रोते हुए कहती है, क्या क्या वो वाकई ही हमें अनाज देगी? क्या मेरे बच्चे पेट भरकर खाना खाकर सो सकेंगे? हाँ हाँ चिड़िया बहन, बस रात की ही तो बात है। तुम रात में जाओगी, अंडों का पहरा दोगी और सुबह होते ही अनाज का ढेर लेकर घर वापस आ जाया करोगी। चिड़िया बहन, तुम चिंता क्यों करती हो?
मैं खुद तुम्हें वहाँ छोड़ कर आऊंगी। कोमल चिड़िया अपने बच्चों के पास जाती है। मेरे जिगर के टुकड़ों, मुझे माफ कर देना। तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही, बल्कि तुम्हारी जिंदगी लेने जा रही है। अगर मैं लौटकर ना आई तो याद रखना, तुम्हारी हर सांस में मेरी ममता की खुशबू होगी। तभी बुलबुल वहाँ आ जाती है। कोमल, ये तुम क्या करने जा रही हो? बिजली की बातों में मत आओ। क्या तुम पागल हो गई हो? इस कपी का एतबार करना बहुत मुश्किल है। बुलबुल, मैं सब जानती हूँ। मेरा दिल भी कह रहा है कि ये रास्ता मौत का है, लेकिन जरा देखो, मेरे बच्चे भूख से दम तोड़ रहे हैं। अगर मैं यहाँ बैठी रही तो आज रात ये मर जाएंगे। ऊपर वाला सब ठीक करेगा। हो सकता है मैं इनके लिए भोजन ले आऊं। अगर मुझे मौत मिलती है तो मिल जाए, लेकिन मेरे बच्चों को जीवन जरूर मिलेगा। फिर कोमल चिड़िया बिजली कवि के साथ वहाँ से चली जाती है। बिजली कवि चिड़िया को एक काली गुफा में ले जाती है। आ गई बिजली, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अरे वाह वाह, ये तो बहुत नरम मांस है, जो मैं कभी ना कर पाई, तुमने वो कर दिखाया। ऐसे चिड़िया का मांस ही तो मैं खाना चाहती थी। बिजली बहन, ये सब क्या कह रही है चील? अरे ओ पागल चिड़िया, ममता ने तुझे अंधा कर दिया था। अब तू इस चील की कैदी है और मैं तेरे घर पर राज करूंगी। धोखा। बिजली, तुम इतनी गिर जाओगी मैंने कभी नहीं सोचा था। अब मेरे बच्चों का कौन सहारा होगा और कौन उन्हें दाना देगा? चील आगे बढ़ती है और कोमल चिड़िया को एक पिंजरे में कैद कर लेती है और बिजली कवि को बदले में ढेर सारा भोजन देती है। बिजली खुश होकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर बुलबुल कबूतर और तोते के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। वो काली कवि बहुत बुरी है, जरूर चिड़िया खतरे में होगी। हम सब दोस्तों को मिलकर चिड़िया की मदद करनी होगी। ऐसा कहते हुए वो तीनों दोस्त चिड़िया की मदद के लिए वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया, मुझे उल्लू वैद ने कहा है कि अगर मैं पीले रंग की चिड़िया का सूप पीऊंगी तो हमेशा जवान रहूंगी। आज तेरा आखिरी दिन है, याद कर ले, जिसको भी करना है। कोमल चिड़िया तो रो रही थी। जैसे ही चील उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है तो उसके दोस्त वहाँ आ जाते हैं। कबूतर, तोता और बुलबुल तीनों मिलकर चील पर हमला करते हैं और हमले में चील घायल हो जाती है। डर के मारे वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप समय पर ना आते तो मैं शायद अब